اس کی گاڑی کی بریکس فیل کی گئی تھی۔ مگر اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے جو شاید تمہیں نہیں معلوم۔ وہ گردن گھمائے آگے پیچھے کا جائزہ لینے لگا، مگر سرسبز پودوں اور پھولوں کے سوا وہ دونوں ہی موجود تھے اس جگہ پر۔ اسے کافی حوصلہ ملا تھا کہ وہ پرسکون ہو کر اس سے کھل کر بات کر سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا معلوم نہیں ہے مجھے؟ وہ جو پہلے ہی اپنے چھوٹے کی گاڑی کی بریکس فیل ہونے کا سن کر اپنے شک کو یقین میں بدلتا دیکھ طیش اور غصے سے بھرا تھا، اس کی بات پہ چونکا۔ آخر اس کے علاوہ اور کیا تھا جو اسے معلوم نہیں تھا؟ اذمار خان پر گولی چلائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیلنس برقرار نہیں رکھ پایا اور شاید تبھی اتنا برا حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا اسے، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی، اس کے اندر کے ابال، اس کی اندرونی بکھری حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اسفند، کیونکہ جب تک میں آیا تھا تب تک تو اذمار کو گھر لایا جا چکا تھا اور اس کی تدفین کی تیاری بھی مکمل تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے اپنے بھائی کے اس وقت کو یاد کرتے، ان لمحات کو دہراتے، مگر وہ کمال مہارت سے ضبط کر گیا۔ اسے یاد تھا اچھے سے کہ شہر پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد ہی اسے کال آئی تھی کہ اس حادثے کی بابت اسے ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا، اور وہ جو سنتے ہی اس قدر بری حالت میں تھا کہ مجبوراً سہائے کو ہی گارڈ کی مدد سے اسے گھر واپس لے جانا پڑا تھا۔ مگر گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کے سینے سے لگتے اس کے آنسو رونے اور خود پر ضبط کرنے کے پہرے بٹھا گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں نے گولی کی آواز اور وہ خون کی چھینٹیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اسفندیار کی آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھیں، آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چہرہ لہرایا تھا۔ اس لمحے کو یاد کرتے اسے بے چینی ہونے لگی شدید۔ چھوٹے خان گستاخی معاف، آپ کو داجان نے یاد کیا ہے۔ سارے گاؤں والے پنچایت میں جمع ہو چکے ہیں اور حویلی کے سب افراد بھی موجود ہیں سوائے آپ لوگوں کے۔ داجان نے آپ دونوں کو بلایا ہے۔ وہ جو ابھی اس بابت کھل کر بات کر رہے تھے کہ اچانک سے پیچھے سے آتی فرید کی آواز پر دونوں ہی چونک کر مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ تم جاؤ، آتے ہیں ہم ابھی۔ اسپاٹ سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ بولا کہ فرید نظریں جھکائے فوراً سے بیشتر وہاں سے بھاگا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون سی پنچایت؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ اسفند نے پریشانی سے ماتھے پر بل ڈالے اس سے استفسار کیا۔ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، چلو۔ زارون کندھے اچکاتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ اسفند کا دماغ کہیں اور ہی چل رہا تھا۔ جانے کیوں اسے اس پنچایت کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا دکھ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جس کے بڑے سے گیٹ اور کھڑکیوں پر جا بجا گہرے کالے رنگ کے پردے لٹکے تھے۔ کمرے کا ماحول بالکل ساکت اور خاموش سا تھا، مگر اندر بڑے سے صوفوں کے اوپر خان حویلی کے افراد کے علاوہ مہمان خصوصی میں شاہ حویلی کے بڑے سائیں اور ارتضیٰ حیدر کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ وہ ایک نظر فرش پر بیٹھے گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اسفندیار اپنے داجان کو پرسکون محفل میں بیٹھا دیکھنے لگا، مگر چہرے کے تاثرات بالکل سرد اور سنجیدہ تھے ان کے۔ زارون مخصوص نشست کی جانب بڑھتے ہوئے اسے بھی اشارہ کر کے بلا گیا۔ زارون نے اپنی مخصوص نشست کی جانب جاتے ہوئے اسے بھی اشارہ کر کے بلایا، جبکہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بتایا کہ وہ وہیں ٹھیک ہے۔ زارون بنا کچھ بولے دلاور خان کے ساتھ والی نشست پر جا بیٹھا، جبکہ وہاں پنچایت میں اسفند ولی خان کو پاتے ہی ہلکی پھلکی سی سرگوشیاں اٹھنا شروع ہوئی تھیں، مگر وہ سب سے بے نیاز ایک جانب پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر ہاتھ سینے پر باندھے بیزار انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو 2 منٹ میں پنچایت سے جا سکتا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے روکتا یا گستاخی کرتا، مگر وہ رکا ہوا تھا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کچھ۔ ارتضیٰ حیدر نے ایک نظر اپنے شاہ سائیں پر ڈالتے ہوئے وہاں سب سے الگ کھڑے اس مغرور انا پسند اسفندیار کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں، مگر اس نے سنا ہوا تھا کہ سالوں پہلے اپنی حویلی کے فیصلے پر بغاوت کرنے والا وہ پہلا شخص اور اکلوتا بچہ تھا اس حویلی کا، اور اب بھی اس کی آنکھوں میں جھلکتی سرکشی کو دیکھ کر، اس کے نڈر بے خوف انداز پر وہ دل سے حیران اور خوش ہو رہا تھا۔ داجان، ہم سب گاؤں والے اذمار خان کے ساتھ ہوئے حادثے کی بابت بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔
गांव के बुजुर्ग अफराद में से एक ने हिम्मत करके अपना मुद्दा पेश किया, जबकि दाजान को तवक्को थी कि कुछ ऐसा ही होगा। जब भी वो महज सर हिलाते उन्हें मजीद बोलने की इजाज़त दे गए। देते भी क्यों ना, जानते जो थे कि जब इंसान किसी दूसरे के घर में घुसते उसकी बहनों बेटियों की ज़िंदगी का फैसला करेगा, तो बदले में हर कोई ये जानने का रवादार तो ज़रूर होगा कि वो क्या करेंगे जब खुद उनका अपना बेटा नहीं रहा। क्या वो उनकी बेटियों के जैसे ही अपनी बेटी पर भी पाबंदियां आयद करेंगे? क्या उसके लिए भी दूसरी शादी गुनाह करार देंगे? क्या उसे भी किसी खुशी में शरीक नहीं होने दिया जाएगा? क्या उसकी ज़िंदगी के रंग भी छीन लिए जाएंगे? सारा गांव कान खड़े किए हुए था, जबकि परेशान तो खुद ज़ारून खान भी हुआ था। मगर उसे कुछ खटका जब नज़रें एक जानिब दीवार से टेक लगाए बुत की मानिद असफंदियार वली पर पड़ी। उसे झुरझुरी सी आई। उसकी लहू होती आंखें, उसके सुर्ख पड़ते चेहरे के संजीदा तासुरात हर किसी को खटकने पर मजबूर कर रहे थे। मेरे नज़दीक कानून और फैसला सब लोगों के लिए बराबर है, चाहे वो खान हवेली की औलाद हो या फिर आप में से किसी की भी। उनकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी कहते हुए। एक मासूम का चेहरा उनकी आंखों के सामने लहराया था, मगर इस वक्त अपने सामने खड़ा अपना जवान पोता, उसकी इस्तेहज़ाइया नज़रें, वो नम आवाज़ से कहते लब आपस में पेवस्त कर गए, जबकि उनकी बूढ़ी आंखें बरसने को थीं। एक जानिब बैठे फैज़ान खान ने सुनते ही ये पहलू बदला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये फैसला कर लिया जाएगा। अब उसे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। वो सोचते हुए गहरी सांस फिजा के स्पुर्द कर गया। ज़ारून ने ज़ख्मी नज़रों से अपने बाप की जानिब देखा, जो सीना ताने ऐसे बैठे थे जैसे अब पुरसकून हुए थे ये सुनते हुए। वो लब भींच गया, मगर बाद में बात करने का ज़रूर सोचा था उसने। हमारी पोती अब रेशम, जो कि इस्मार खान की बीवी थी, आज से वो भी बाकी सब बच्चियों की तरह एक बेवा बनकर ज़िंदगी गुजारेगी। उसकी ज़िंदगी आम लड़कियों से अलग कर दी जाएगी। वो मोरू के साथ रहेगी अब से। और एक मिनट दाजान, फिजा में तैश से बिफरी गज़ब से भड़कते शोलों की मानिद उसकी तेज़ आवाज़ गूंजी थी। दाजान ने आंखें मीचते सोफे की टेक को हाथ में दबोचा, जबकि वहाँ मौजूद नफूस की नज़रें एकदम उसकी जानिब उठी थीं, जबकि मुकाबिल बिना किसी की जानिब देखे हाथ पैंट की पॉकेट्स में फंसाए हॉल के बीचों बीच खड़ा था। वही पंचायत थी, वही लोग थे और वही असफंद वली खान, मगर अब वक्त बदल चुका था। अब वो कमज़ोर सा दिखने वाला असफंदियार खान नहीं था, बल्कि एक तवाना मजबूत मर्द था, जिसके पुरकशिश चेहरे की जानिब उठती निगाहें कईयों को ज़ेर करते उसके कदमों में गिरा चुकी थी। मगर वो गिराने को नहीं, बल्कि उठाने को बना था, उन सब का सर उठाने को। उसे जो खुद को बेबस कसूरवार समझती थी, वो एक नज़र उन बोसीदा दरो दीवार को देखते गहरा मुस्कुराया कि इर्तज़ा हैदर शाह ने टांग पर टांग जमाए उसकी सहर अंगेज़ शख्सियत और उसकी जानलेवा मुस्कुराहट को देखा था। क्या था वो शख्स? कोई भी पलों में समझने की सही करते उसकी ज़ात में ऐसे उलझता था कि सदियों परे तक वाकिफ ना हो पाता। आप बता सकते हैं कि आप किस हैसियत से ये फैसला ले रहे हैं गुलदीन खान साहब? उसके चुपते लहजे के साथ उसके अदा किए गज़ब से भरपूर अल्फाज सरगोशियों का कोहराम सा उठा था पंचायत। जुबान संभाल कर बोलो असफंद, दाजान है ये तुम्हारे। खावर खान बिफरते हुए भरी महफिल में उसे अपने बाप का नाम यूं लेते देखकर चिल्ला उठे थे। आराम से चचा साईं, चिल्लाइए मत। ये 16 साला असफंद नहीं, बल्कि 26 साला पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में अव्वल नंबर पर जाना जाने वाला खान है। खान। क्यों गुलदीन साहब, यही अल्फाज थे ना आपके? जब ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जानना शुरू कर देना, तो तब आ जाना सीना ठोक कर मेरे सामने। देख लेंगे। ये दुनिया जानती भी है और झुकती भी है मेरे सामने, मगर ये और बात कि मुझे झुकाना पसंद नहीं, क्योंकि ये काम सिर्फ कमज़र्फ लोग करते हैं। खैर छोड़ें, मुद्दे पर आते हैं। ये बातें तो फुर्सत में भी हो सकती हैं। अपनी ही बात का मजाक उड़ाते वो घूमते हुए ज़ारून खान, दिलावर खान और बाकी सबके सोफ़ों के गिर्द चक्कर लगाने लगा, जबकि सब गर्दनें घूम घूम कर मुकाबिल को देख रही थी और सुन रही थी।
کیونکہ بولنے کی تو سکت سے جیسے محروم ہو گئے تھے سب۔ اب ریشم کی زندگی کا فیصلہ لینے کا اختیار آپ نہیں رکھتے، بلکہ کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ نہیں لے سکتے آپ۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو جو یوں کسی معصوم کو پوری زندگی کے لیے ایک نام کے سہارے گزارنے پر مجبور کر دیں، بلکہ اس پر زندگی ہی تنگ کر دیں؟ اسفند، خاموش ہو جاؤ، میں باپ ہوں اس کا۔ جب مجھے پرواہ نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے؟ خاور خان چلاتے ہوئے بھڑک اٹھے تھے اور مقابل کھڑے ہوتے طائش سے بولے تھے، مگر کاش کہ وہ مقابل کے دل میں جلتی سالوں کی آگ سے واقف ہوتے۔ افسوس، یہ بات آپ کو یاد نہیں رہی کہ آپ باپ ہیں اب ریشم کے۔ اگر یاد ہوتی تو آپ محض اس بات پر کہ وہ بیٹی ہے، آپ کا بیٹا نہیں، یوں پوری زندگی اسے اپنی شفقت کے سائے سے محروم نہ رکھتے، جیسے باپ کے لیے بول رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو یاد ہوتا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ اس کے لیے بھی بولتے۔ ارتضیٰ حیدر نے ابرو اچکاتے اس دلیر کو دیکھا تھا۔ جانتے تھے اب زندگی تنگ ہوگی اس پر، مگر یہ تو صرف شروعات۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم اسفند یار، کہ مجھے اپنی بیٹی کا خیال نہیں، اس سے محبت نہیں؟ خاور خان بھری پنچایت کے سامنے اپنی بے عزتی پر بوکھلاتے طیش میں آئے تھے۔ یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیا آپ کو اس سے محبت ہے، اس کی فکر ہے یا نہیں۔ ویسے ہی روکھے انداز میں جواب دیتے وہ داجان کی جانب رخ کرتے کھڑا ہوا۔ پورے خاندان کی نظریں اسی کی جانب تھیں۔ گل خان نے مسکراتے طنزیہ انداز میں اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا، جس کا پوتا آج بھری محفل میں اسے رسوا کر رہا تھا۔ 10 سال پہلے کی بات جو لوگ بھلا چکے تھے اسے دوبارہ سے زندہ کرتے جگا رہا تھا۔ وہ اکڑتے اپنے پاس بیٹھے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہنسے، جہاں سامنے ہی داجان بے بس سے جھکے کندھوں سے فرش کو گھور رہے تھے۔ اسفند جاؤ یہاں سے، اب کی بار دلاور خان چیخے تھے، جبکہ زارون جانتا تھا کہ اسے روکنے کی کوشش کرنا بیکار ہوگا، اسی لیے وہ ٹیک لگائے بس انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو آیا ہوں، تھوڑا برداشت کر لیں، چلا جاؤں گا چچا جان۔ وہ طنزیہ ان کی بات کا مذاق اڑاتے تیز کاٹدار لہجے میں بولا کہ دلاور نے مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے خود پر ضبط کیا۔ تو میں کہاں تھا؟ ہاں، یاد آیا، میں تو آپ سب گاؤں والوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ مڑتے ہوئے گاؤں والے جوان اور بوڑھے مردوں کے بیچ کھڑے ہوتے ہوئے بولا کہ دلاور خان کے ساتھ ساتھ فیضان خان نے بھی ماتھے پر چمکتے پسینے کو صاف کیا، جبکہ فرید خان نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ کر داد دیتے ہوئے سر ہلایا۔ ارتضیٰ، ہمیں چلنا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے حویلی میں۔ شاہ سائیں اس کے کان کے پاس ہوتے ہوئے بولے تھے۔ جانتے تھے کہ اگر اسے بروقت یہاں سے نہ لے گئے تو یقیناً اس کا انجام برا ہوگا۔ ابھی تو اللہ اللہ کرتے اسے ان سب بکھیڑوں سے دور رکھا تھا، کجا یہ کہ وہ دوبارہ ان سب میں شامل ہو جاتا۔ دادا سائیں آپ جائیں، میں بعد میں آؤں گا۔ اس کی آنکھیں، کان، دماغ سامنے موجود شخص کی حرکات اور باتوں میں اٹکے ہوئے سے تھے۔ وہ بنا ان کی جانب دیکھے انہیں جانے کا کہتا دوبارہ ہاتھ ٹھوری کے نیچے جما گیا کہ شاہ سائیں داجان کو اشارہ کرتے وہاں سے رخصت ہوئے تھے، مگر جاتے جاتے ان ایک کاٹدار نظر وہ اسفند ولی خان پر ڈالنا نہیں بھولے تھے، جس کی وجہ سے ان کا پوتا ان کی سنے بغیر اب جانے کس راہ کا مسافر بننے والا تھا۔ وہ سر جھٹکتے غصے سے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ اگر آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اپنے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ بھی جگائیں کہ اپنی بیٹی کے اچھے برے کا فیصلہ کر سکیں۔ عورت کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوتی کہ جب دل چاہا اپنی مرضی سے انہیں کسی کے ساتھ باندھ دیا اور جب دل چاہا اس پر الزام لگا دیا کہ اس کی وجہ سے آپ کے بیٹے، آپ کے لال اس دنیا میں نہیں رہے۔ اگر انصاف کرنا ہے تو پھر برابر کا کریں۔ جس طرح سے بیٹے کے مرنے پر بہو کو الزام دیتے ہیں، ویسے ہی بہو کے مرنے پر بیٹے کی بھی دوسری شادی نہ کروائیں نا، اسے بھی لڑکیوں کی طرح سب سے الگ تھلگ کر دیں، کیونکہ وہ بھی تو اس مرنے والی کا شوہر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو کیا پھر اصول برابر نہیں ہونے چاہیے سب کے لیے؟ اس کی بات میں وزن تھا۔ اس نے ایک ایسا نیا رخ بتایا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کی جانب دیکھتے خاموش ہو گئے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر آپ ازمار کی بیوی کی طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں بیٹھے ایک شخص نے اس کی بات پکڑی، جبکہ سب کی نظریں اسی جانب تھیں۔ کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے، خون کا رشتہ ہے میرا اس سے، میرے چچا کی بیٹی ہے وہ۔
وہ سنجیدگی سے بولتے وہاں سے نکلا تھا کہ اس کے قدم چوکھٹ کے بیچوں بیچ رکے تھے۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اپنی بیٹی کی باری آئی ہے تو اصول بدلنا چاہ رہے ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اصول بدلنا چاہ رہے ہیں یہ خان حویلی والے؟ وہی استہزائیہ آواز تھی جسے سنتے وہ وہیں پہ کھڑے ہوتا، رخ موڑتے سب کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ بس ریشمے کو بچانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ایک اور گاؤں کے لڑکے نے ہنستے ہوئے بات تاکی تھی۔ بات صرف اتنی ہے، اب ریشم کو میرے ہوتے ہوئے کوئی چھو کر تو دکھائے۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے، امانت ہے وہ میرے پاس، اور امانت کی حفاظت کرنا اسفندیار ولی اپنے مرحوم باپ سے سیکھ کر آیا ہے۔ میں بچا رہا ہوں اس کو اور تا عمر بچاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان پر ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ وہ سرد برفیلے انداز میں فیصلہ سنا کر وہاں سے نکلا تھا جبکہ خاندان بھر کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ دیوار سے چھلانگ لگاتے فوراً سے بھاگتے ہوئے بنا کسی کی نظروں میں آئے سامنے موجود برگد کے پیڑ کی آؤٹ میں چھپتے کھڑی تھی۔ وہ خود پر اوڑھی بڑی کالی سی چادر کو ذرا سا منہ پر سے ہٹاتے ایک نظر بند حویلی کو دیکھتے اپنی کوہنی کو دیکھنے لگی جہاں اسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ زیادہ اونچائی سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے اس کی بازو پر خراش آئی تھی، مگر وہ درد کو نظر انداز کرتی تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھی۔ اس کا ارادہ جلدی سے وہاں پہنچنے کا تھا تاکہ وہ جلد از جلد واپس آ سکے۔ وہ پچھلے راستے پر سے ہوتی حویلی کے پیچھے کی جانب سے گزرتے وہاں سے نکلی تھی کہ اچانک پیچھے سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ خوف اور ڈر سے بالکل سفید پڑی تھی۔ اس کے قدم ایک دم سے زمین پر تھمے تھے جیسے کہ اگلا قدم لینا دشوار ہو۔ وہ اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچتے خوف سے پھیلی اپنی آنکھوں کو سختی سے میچتے لرزنے لگی۔ اگر حویلی میں سے کوئی ہوا تو یقیناً اسے یوں بنا بتائے بھاگتے گھر سے نکلنے پر سزا دی جائے گی، اور سزا جانے کیسی ہو سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ جبکہ گاڑی میں بیٹھا نفوس سڑک کے بیچوں بیچ یوں سے رکنے پر چونکا تھا۔ ایک نظر مڑتے وہ شیشے سے نظر آتی حویلی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ ضرور کوئی حویلی کی ہی رہنے والی خاتون تھی، مگر یوں اس وقت چوروں کی طرح بھاگنا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا جہاں اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اسے 10 بجے تک میٹنگ میں جانا تھا اور اوپر سے آگے ہی شاہ سائیں ناراض ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ سر جھٹکتا ڈور کھولتے باہر نکلا اور چلتے ہوئے مقابل کے سامنے کھڑا ہوا۔ سرتا پاؤں لپٹی کالی بڑی سی چادر میں وہ وجود بالکل چھپا ہوا سا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ خاتون بزرگ تھیں یا وہ کوئی لڑکی تھی۔ جب ہی اسے آدھی دکھتی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ آرام سے اپنے دائیں ہاتھ سے کھینچتے اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا گیا۔ وہ جو ڈر سے آنکھیں میچے ہوئے تھی اچانک سے چادر کے چہرے پر سے ہٹنے پر پٹ سے آنکھیں کھول گئی، ہراساں سی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی کہ کون ہیں آپ؟ اپنے سامنے کسی وجود اجنبی کو پاتے وہ خود کو سنبھالتے بھویں اچکاتے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی کہ اس کے اچانک سے بدلے رویے پر ارتضا حیدر ٹھٹکا۔ یہ تو آپ بتائیں گے چوروں کی طرح بھاگنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پھیلی گہری آنکھوں میں دیکھتے بولا تو علیشے کا رنگ ایک دم سرخ پڑا، مگر وہ اپنی چوری چھپاتی ڈٹ گئی۔ علیشے کا رنگ ایک دم سے سرخ پڑا تھا مگر وہ فوراً سے اپنی چوری کو چھپاتی ڈٹ گئی۔ آپ سے مطلب؟ کام کریں اپنا اور میری جاسوسی کرنے کی کوشش مت کریں ورنہ اپنے لالا کو بتاؤں گی اور پھر آپ کی خیر نہیں۔ اپنے باپ جیسے بڑے بھائی کا سایہ ہی اب اس کے سر پر اکڑ دکھانے کے لیے کافی تھا۔ تو کیا آپ کے لالا جانتے ہیں کہ ان کی بہن یوں چوری چھپے اپنے گھر کی دیواریں پھلانگ کر اس طرح بھاگ رہی ہیں کسی سے ملنے کو؟ وہ اسے چھیڑنے کے انداز میں کہتے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اس سے باتیں کرنا، جبھی وہ بات کو طول دے رہا تھا، جبکہ علیشا کا تو مانو غصے سے سنتے ہی برا حال ہو گیا تھا اس کی بات۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کسی سے ملنے کے لیے بھاگی ہوں؟ وہ حیرت سے گنگ منہ کھولے غصے سے پوچھنے لگی۔ چھوٹے شاہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ مان نوید اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کرتے بولا کہ ارتضا ٹھٹکتے ہوئے ہوش میں آیا۔ چلے جاتے ہیں، صبر کرو تم۔
उसे गुस्से से झिड़कते वो फौरन से अलीशे की जानिब बढ़ा, जो उसे मसरूफ़ देखकर भागते हुए वहाँ से निकली। अरे कहाँ जा रही हैं आप, रुकें तो। वो भागता हुआ दोबारा उसके रास्ते के बीचों बीच जा खड़ा हुआ था कि वो मुंह खोले उस बिन बुलाई आफत को देखने लगी। उसे घर भी वापस आना था। अगर यहाँ से ना निकलती तो अल्लाह जाने पीछे क्या आफत आ जाती। देखें आप, रास्ता छोड़े मेरा, मुझे वापस भी जाना है। वो गुस्से से एक साइड से निकलते वहाँ से आगे बढ़ी। आइए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। वो गाड़ी में बैठते उसके पास गाड़ी रोकते ऑफ़र करने लगा कि अलीशे ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए वो गाड़ी में बैठते उसके पास गाड़ी रोकते ऑफ़र करने लगा कि अलीशे ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए उस मूँछों वाले आदमी को देखा। आप जाएंगे कि मैं सर फोड़ूं आपका। वो गुस्से से कहती पाँव पटकते आगे बढ़ी कि अचानक से नूरा की आवाज़ पर उसके कदम थमे थे। वो मुड़ती फक चेहरे से अपनी जानिब आती नूरा को देखने लगी। लीशे बीबी, कहाँ जा रही हैं आप? खुदा के वास्ते वापस चलें, ऐसा ना हो कि किसी को भिनक पड़ जाए तो हवेली में कोहराम ही मच जाएगा। वो हाथ जोड़ते रूहान से लहजे में बोली थी कि लीशे ने गुस्से से उसे घूरा। जाओ यहाँ से नूरा, मेरे पीछे मत आओ। वो एक नज़र खुद से दूर जाती गाड़ी पर डालते गुस्से से बोली कि नूरा ने लब दांतों तले दबाए। बीबी आप समझ नहीं रही, असफन लाला परेशान हो जाएंगे। वो आखिरी पैंतरा आजमाते हुए बोली। जानती थी कि अगर किसी को भी पता चला कि अलीशे बिना बताए यूं भागते हुए इज़मार की कब्र पर गई है तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो जिद कर रही थी कि उसे वापस लेकर जा सके। नहीं होंगे लाला परेशान, कौन बताएगा उन्हें? तुम अगर सीधे से चलोगी मेरे साथ तो ठीक है, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। उसे आगे ही बहुत गुस्सा था उस पर, इसीलिए वो अब जब्त खोते हुए टूट पड़ी थी उस पर। मैं चलती हूँ आपके साथ, वैसे भी आप रास्ता नहीं जानती। उसे अकेले जाता देख नूरा बौखलाते हुए उसके पीछे हुई थी कि कहीं वो अकेली ही ना निकल पड़े। और अभी तो गांव वाले इतने गुस्से से हवेली से गए थे, उसे लग रहा था कि ज़रूर कोई फैसला गांव वालों की मर्ज़ी के खिलाफ हुआ है। जभी तो सब आग बबूला होते हुए निकले थे पंचायत से, और इन हालात में अलीशे का अकेले जाना। आहिस्तगी से हैंडल को नरमी से दबाते वो जूते एक हाथ में पकड़ता दबे कदमों से आगे बढ़ाता, मगर उसकी नज़रें चाको चौबंद चारों ओर का जायज़ा ले रही थीं। वो गौर से आगे पीछे देखता, मुस्तैद सा आगे बढ़ा था, मगर अंधेरा होने के बाइस अपने रूम में जाना। वो सोचते गहरा सांस फिजा के सपूत करते, एक नज़र सामने बंद रूम में डालता आगे बढ़ा। जूते नीचे रखते वो स्टाइल से अपनी जैकेट को झाड़ता, हाथ पैंट की पॉकेट में डालते आगे बढ़ा, जैसे कि उस घर का डॉन वही था। अपने रूम में आते ही दरवाज़ा खोलते वो ठिठका था, क्योंकि लाइट ऑफ थी, मगर वो तो उसे ऑन किए रखता था। कंधे उचकाते वो जैकेट उतारते एकदम से बेड पर औंधे मुंह गिरा था। आंखें बंद किए वो पुरसकून होने लगा, मगर अचानक ही अपनी गर्दन पर कुछ अजीब सा महसूस करते वो डरते हुए सांस रोक गया। क्या था ये सब? उसका चेहरा एकदम से पसीने में शराबूर हुआ था। जब वो लम्स सरकते हुए उसके पेट की जानिब बढ़ा था, वो चीखते एकदम से भागा था कि अचानक से खुद पर वजन महसूस करते हैरत से आंखें डर कर फैला गया। छोड़ो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज़ छोड़ो। एहान एकदम चीखते हुए मिन्नत करने लगा कि एकदम से रूम में पुरजोर कहके की आवाज़ के साथ लाइट भी ऑन हुई। वो एकदम से हड़बड़ाते खामोश होता बेड की जानिब देखने लगा, जहां उसका अपना ही भाई बुरी तरह से हंसते हुए लोट पोत हो रहा था। वो गुस्से से अपनी नीली आंखों को छोटे किए सामने खड़ी अपनी भाभी को देखने लगा, जो उसके देखने पर फौरन से उंगली होंठों पर रखती खामोश हुई। दैट्स नॉट फेयर भैया, वो गुस्से से अपना मजाक बनते देख कर कहते वहाँ से उठने लगा था कि आहत ने दोबारा से उसका बाजू पकड़कर उसे अपने पास गिराया। नॉट फेयर के बच्चे, कहाँ था तू? टाइम देखा है? एक टांग उसके पेट पर रखते वो सर उठाकर उसे गुस्से से देखते हुए बोला। वो आमिर गुम हो गया था, उसी को ढूंढने में टाइम लग गया। कुछ ना सूझने पर वो कहानी बनाते हुए बोला, गुम होने के बच्चे 1:30 बज गए हैं। मैं और तेरी भाभी कब से तेरा इंतज़ार करते हलकान हो रहे हैं। भाभी क्या यार, क्यों जागती रहती हैं आप, सो जाती। वो सोफे की जानिब देखते दुख से बोला कि ऐसी हालत में रानिया का आराम करना ज़्यादा ज़रूरी था, और वो उस लाट साहब की वजह से उसका इंतज़ार करते हुए जाग रही थी।
अगर तुम वक्त पर आ जाते तो इस ममता की भूखी को यूं रात भर जागते ना कर अगर तुम वक्त पर आ जाते तो इस ममता की भूखी को यूं रात जागते इंतजार ना करना पड़ता। आहत काफी गुस्से में था होता भी क्यों ना। रानिया का लास्ट मन था और किसी भी वक्त उसकी तबीयत बिगड़ सकती थी, मगर वो हमेशा की तरह एक ही जिद पर अड़ी थी कि जब तक अहान को अपनी आंखों से नहीं देख लेती नहीं सोऊंगी तब तक। और इसीलिए वो दोनों उस निकम्मे का इंतज़ार कर रहे थे। आई एम सॉरी भाभी, आपको फिर से मेरी वजह से जागना पड़ा। एहान सुनते तड़पता रानिया के पास पहुंचा और अकीदत से अपनी माँ मकाम भाभी के हाथों को पकड़ते हुए माजरत भरे लहजे में बोला, तुम्हारे भाई को तो बस आदत है, जब देखो शुरू हो जाते हैं। और तुम छोड़ो ये सॉरी वोरी, जानते हो ना मेरे लिए तुम मेरी पहली औलाद हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो मुस्कुराते हुए उसके बालों को बखेरते बोली तो एक पुरकशिश से मुस्कुराहट ने एहान के होंठों का अहाता किया। जानता था वो, शादी के 5 साल बाद अल्लाह ने उन्हें इस नेमत से नवाजा था अब, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर बार अपने रब का शुक्र अदा करती वो खुश थी। और जब कभी आहद उसे चेकअप के लिए बोलता तो कह देती, जब इतना प्यारा पाला पोसा जवान बेटा है तो क्यों किसी डॉक्टर के दर पर जाएं। मैं अपने रब से मांगूंगी, अगर मेरे हिस्से में औलाद हुई तो ज़रूर नवाजेगा, वरना एहान तो है ही। तुम अब उठो और जाकर आराम करो, इस गधे का भी इलाज करता हूँ मैं। आहद उठते हुए गुस्से से रानिया का बाजू पकड़ते उसे रूम से निकालते बोला था, जबकि वो सुने सुने कहती रह गई कि वो दरवाज़ा लॉक करके उसकी जानिब आया। क्या ऐसे घूर क्या रहे हो? उसे अपने सर पर हाथ कमर पर टिकाए यूं घूरता देखकर वो अबरू उचकाते बोला कि आहद चलता हुआ उसके पास आया, जो कुशन गोद में रखे फैलते हुए सोफे पर बैठा था। सामान पैक करो अपना। पुरस्कार मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो मज़े से बोला था कि एहान गड़बड़ाते हुए उसकी जानिब देखने लगा, कहीं घर से तो नहीं निकाल रहे। सामान वो क्यों? उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसके मुताबिक अब उसकी वोट लगने वाली थी, कहीं किसी लड़की ने तो उसकी शिकायत नहीं लगा दी थी, क्योंकि तुम पाकिस्तान जा रहे हो, कश्मीर। मुस्कुराते साथ ही वो खुद ही उसकी कबर्ड खोलते कपड़े निकालने लगा कि एहान ने मुंह खोलकर उसके अल्फाज को सुना। पाकिस्तान, कश्मीर, क्यों, कहाँ, कब? वो चीख उठा था और उसके पास खड़े होते हुए रोते हुए बोला, जो बिना उसकी जानिब देखते अपने ही काम में मसरूफ सा था, क्योंकि असफंद यार ने बुलाया है इसलिए। वो सूटकेस में कपड़े रखता हुआ सरसरी सी नज़र देखते दोबारा से कपड़े रखने लगा, जबकि असफंद यार का नाम सुनते वो बेहोश ही होने को था। वो सड़ा करेला, मुझे क्यों बुला रहा है वो? मैं कहीं नहीं जा रहा, सुन लें भैया आप। उसे मुसलसल खुद को इग्नोर करता सामान पैक करते देख वो ऊंची आवाज़ में बोला था कि आहद ने हाथ रोकते उसे देखा। तुम जा रहे हो क्योंकि जाना ज़रूरी है, कुछ फाइल्स हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसे अर्जेंट। तुम्हारे अलावा ये काम किसी और से नहीं करवा सकता मैं, और तुम जानते हो कि आजकल कोई भी एतबार के काबिल नहीं। सो अब तुम्हारा ही जाना बनता है हर हाल में। फ्लाइट है सुबह की तुम्हारी। मगर भैया, वो इंसान खड़ूस, मुझे देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है उसे। आप चले जाएं प्लीज़। असफंद का गुस्से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया तो वो मुंह बनाते बोला, अपनी भाभी की कंडीशन देखो, क्या लगता है मुझे जाना चाहिए उसे छोड़कर, वो भी इस हालत में? उसे शर्म दिलाने के लिए वो दांत कचकचाते हुए बोला कि एहान कान खुजाने लगा। अब तुम खामोशी से रेस्ट करोगे क्योंकि कल तुम जा रहे हो और ये फाइनल है। उसे फिर से मुंह खोलते देखकर वो फौरन उसे हुक्म सुनाता कमरे से बाहर निकल गया। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान की हसीनाओं की बारी है। हाय, सुना है कि मशरकी हुस्न काफ़ी खूबसूरत होता है, कल देख भी लेंगे। हमेशा की तरह मनफी बात में से भी वो अपने काम की बात निकालते रेस्ट करने का सोचते ही बेड पर आड़ा तिरछा होकर लाइट ऑफ कर गया। ये सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंचायत से निकलते कई लोगों की दबी दबी मुज़ाहमत और गुस्से को वो देख चुका था। जानता था कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को तबाह कर देती है, और वही हो रहा था। जब ही तो वो परेशान था। क्या नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल पुरसकून से अंदाज में वो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में फंसाते सकून भरा सांस खारिज करते बोला,
अब उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। इतने बरसों की भड़ास में कुछ तो कमी वाकया हुई थी। जबकि ज़ारून ने घबराते हुए उसके पुरसकून चेहरे को देखा। यार, तुम नहीं जानते, आज की ये पंचायत बिना किसी फैसले के मुस्तरद हो चुकी है। मगर आज नहीं तो कल लोग फिर से आएंगे और दोबारा से फैसला मांगेंगे। तब हम क्या करेंगे? उसे समझाने वाले अंदाज में कहते वो पास गुजरते मुलाजमों को देखकर खामोश हुआ था। जबकि असफंद यार उसे देखकर सर हिला गया। ना आज ना कल, मेरे होते ये फैसला कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका फैसला हो चुका है। उसके लहजे की मजबूती पर ज़ारून ठिठकते हुए उसकी जानिब देखने लगा, जो आगे ही उसकी सवालिया नज़रों को पढ़ चुका था। अब रब मेरे पास इज़मार खान की आखिरी निशानी और अमानत है। वो जाते हुए सौंप कर गया है उसे मुझे। अब से मेरे अलावा कोई भी उसकी ज़िंदगी का फैसला करने का कोई हक नहीं रखता, फिर चाहे उसका बाप खावर गुलदीन खान ही क्यों ना हो। मजबूत डटे लहजे में वो अपनी काली आंखें ज़ारून खान की आंखों में गाड़ते इस अंदाज से बोला था कि वो लब आपस में पैवस करके रह गया। आप फ़िलहाल इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, हादसे की फुटेज हासिल करें, फिर आगे का प्रोसीजर होगा। मगर यहाँ ये सब कैसे? अभी तो इज़मार की कुरान खानी भी है, ज़ारून ने झुंझलाते हुए कहा। इज़मार तो छोटा होते हुए भी उसकी मान जाता था, मगर ये तो उल्टा इसी पर हुक्म चला रहा था। उसने दांत पीसते हुए उसे देखकर कहा, जिसके जाने के महज एक दिन बाद ही उसकी मनकूहा को यूं बेदर्दी से मारा पीटा गया हो। क्या ये सब उसकी रूह को सुकून देगा? जब उसकी रूह पुरसकून नहीं होगी तो फिर ये दिखावे की क्या ज़रूरत? वो तनफ्फुर से सर झटकते हुए बोला था। ज़ारून ने अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते नीचे की जानिब देखा, जहाँ सुहाइब परी को उठाए आगे बढ़ रही थी। आप जाएं और कोशिश करें कि आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। उसके कंधों को थपकते वो उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखता। उसे ढके छुपे अल्फाज में समझा गया कि वो मुंह बनाते उसके हाथ को कंधे से झटक गया। वो फ्रेश होते, मुंह तौलिए से साफ करते कमरे में दाखिल हुआ तो नज़रें बेड पर लेटी अपनी नन्ही परी, उसकी कुल कायनात अपने दोनों पाँव को हाथों से छूते खिलखिला रही थी। पर पड़ी, उसे देखते ही ज़ारून खान के अंदर एक तमानियत भरा एहसास सब उभरा। वो टॉवल एक जानिब रखते आगे बढ़ा था कि अचानक से उसके पास से हवा के तेज झोंके की मानिद वो गुजरी थी और आगे बढ़कर उसे उठाकर अपनी जानिब करते उसके कपड़े चेंज करवाने लगी। जबकि ज़ारून उसकी फुर्ती देखकर हैरान सा था। कहा कुछ नहीं, वो यूं ही मोबाइल जेब से निकालते ज़ाहिरी तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था, मगर नज़रें बार बार उठती सुहाई की पुश्त से टकरा रही थी, जो परी के साथ जाने कौन सी ज़ुबान में बातें कर रही थी कि आगे से वो भी हंसते खिलखिलाते उसे जवाब दे रही थी। वो नोट कर रहा था कि इन कुछ ही दिनों में वो काफ़ी मानूस हो चली थी सुहाई से, और अब आगे से काफ़ी बेहतर भी महसूस हो रही थी। शायद ये मुकम्मल तवज्जो और प्यार का असर था। वो झुंझलाते हुए फ़ोन जेब में रखते उठा और बढ़कर दोबारा उसके सर पर सवार हुआ। अब बस कर दो, हो गया हो तो मुझे दो परी को, सर्द लहजे में उसके कान के पास कहते वो फौरन से हाथ बढ़ाते परी को थामने लगा कि नज़रें उसके झुके चेहरे पर गईं। ज़ारून खान ठिठका उसकी भीगी पलकों को देखकर, मगर फौरन से गर्दन घुमाते ड्रेसिंग रूम में दौड़ते घुस गई थी वो कि ज़ारून को बेचैनी होने लगी। क्या वो रो रही थी? अपनी सुबह की हरकत याद आते ही वो आंखें मीचते सर को नफ़ी में हिला गया। यकीनन वो रो रही थी। परी के गाल पर प्यार करते वो बंद दरवाजे को घूरते लब दांतों तले दबा गया। क्या उसने गलत किया था? अपने ही दिमाग में उठती हुई सोचों पर वो झुंझलाते हुए सोचते बाहर निकला। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। सर झुकाए वो उनके आगे सर करते मोहब्बत से बोला था कि बहुतों ने टेक छोड़ते आंखें खोलते उसकी जानिब देखा और लाड से उसके झुके सर पर जा बजा मोहब्बत से बोसा देती नम आंखों से हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा गई। तबीयत कैसी है आपकी? परी को बेड पर लिटाते वो मोहब्बत से उन्हें साथ लगाए नरमी से बोला कि बहुतों के आंसुओं में रवानी आ गई। कैसी होगी वो माँ जिसका जवान जहान बेटा ना रहा हो? अजियत और कुर्ब से आंखें मीचते वो तकलीफ से बोली थी कि ज़ारून ने उनके सर को सहलाते बोसा दिया। वो जानता था कि वो तकलीफ में है अभी। अपने जवान बेटे की मौत का सदमा भला छोटा कहाँ हो सकता था। अम्मी, आपको अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना है। मैं आता रहूँगा आपसे मिलने।
क्या क्या कहाँ जा रहे हो तुम? बहुतों सुनते ही तड़पते हरासा नज़रों से उसे देखने लगी कि वो लब पैवस कर गया अपने आपस में। जाना ज़रूरी है अम्मी, मगर मैं मिलने आता रहूँगा आपसे। नरमी से उनकी पेशानी पर बोसा देते वो आंखें मींचते हुए बोला, नहीं, तुम भी चले जाओगे इस मार की तरह।" वो रोते हुए उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी कि ज़ारून ने जबड़े भींचते खामोश नज़रों से फर्श को घूरा। "अम्मी जाने दें मुझे, यहाँ रहा तो शायद जी नहीं पाऊंगा मैं।" एक खामोश आंसू उसकी आंखों से बहते हुए उसकी हल्की बढ़ी हुई शेव में जज्ब हुआ था। वो थामते उनका रुख अपने जानिब कर गया। "मैं आता रहूँगा ना आपसे मिलने, मगर आप भी एक बात का ख्याल रखें। अगर आपने बेटा और मैंने भाई को खोया है, तो रेशमे ने भी अपना शोहर, अपना सब कुछ खोया है। आपका यूं उसे इल्ज़ाम देना, उसे मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। और आप जानती हैं ना इज़मार को कितनी अजीज़ थी वो। उसे पहुंचाई तकलीफ़ आपके बेटे की रूह को बेसकून कर देगी, इतना तो आप भी जानती हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप उस मासूम को उसके हाल पर छोड़ देंगी। मगर ज़ारून, तुम क्यों जा रहे हो? रुक जाओ अपनी माँ के पास।" वो बिना उसकी सुने उसके कहते ही उसके कॉलर को झंझोड़ते हुए बोली, "मैं रेशमे को एक नज़र देख लूँ, फिर आता हूँ आपके पास।" वो कहते हुए परी को उठाए बाहर निकला था कि पीछे वो उसकी पुश्त को घूरते रह गई। आहिस्तगी से बिना आवाज़ किए वो हैंडल घुमाते हुए दरवाज़ा खोल अंदर बढ़ा था। एक नज़र बरसों फैले अंधेरे में वो कमरे के दरो दीवार को देखते अब आगे बढ़ा था और चलते हाथ में पेंट की पॉकेट में डालता बेड के पास पहुंचा था, जहां उसकी तवक्को के मुताबिक खाली बेड उसका मुंह चिढ़ा रहा था। ठीक कहा था किसी ने कि जब इंसान अंदर से पुरसकून ना हो तो ज़ाहिरी नींद और आराम रूह को पुरसकून नहीं कर सकते। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर वो चलते लाइट ऑन करता सोफे पर बैठ गया था। दोनों हाथ माथे के बीच फंसाए वो गहरी सोच में मुब्तला आंखें मूंद गया। ज़ारून की कही बातें, ऊपर से गांव और हवेली वालों का रिएक्शन, वो जानता था कि उसकी मुश्किलात बढ़ेंगी या फिर अभी शुरुआत हुई थी इन सब की। वो जानता था उसे क्या करना है, सोचता नहीं था, क्योंकि सोचने का काम उसने कब का छोड़ दिया था। अब भी वो महज वक्त गुजार रहा था। वो चाहता था कि कुछ दिन मजीद गुजरें ताकि अब रेशम का दुख थोड़ा कम हो सके। उसके बाद वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाए। अचानक से उसकी आंखों के सामने फैज़ान खान का चेहरा लहराया और वो हाथ थोड़ी के नीचे रखते आंखें खोले सोच में डूब गया। इज़मार, उससे बातों ही बातों में कई बार फैज़ान का जिक्र सुन चुका था वो, और साथ में रेशमे को लेकर अपनी परेशानी भी। वो कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता था, मगर अगर असफन के इसरार पर उसने शेयर किया था तो ज़रूर वो बेहद परेशान था इस मामले के बारे में। और अब तो एक ही मुलाकात में वो समझ चुका था कि उस आदमी में ज़रूर कोई झोल था, कहीं ना कहीं तो कुछ छूट रहा था उससे, मगर क्या? वो अपनी ही सोचों में मगन ख्यालात परख रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खुला। वो नासमझी से आहट पाते ही मुड़ते पीछे देखने लगा, जहां वो खुद उसे कमरे में पाते हाथ दुपट्टे से साफ करती ठिठक कर रुकी थी। सूजी हुई बेतहाशा सुर्ख सुनहरी आंखें, चेहरे और शानों पर जा बजा बिखरे नम सुनहरी घुंघरियाले बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत। वो नर्मो गुदाज वजूद उस वक्त किसी राह की भटकी मुसाफिर मालूम हो रही थी। असफन यार सरता पाँव से गहरी नज़रों से देखते रुख मोड़ गया। अब रेशम शर्मिंदा सी होती फौरन से दुपट्टा ओढ़ते कमरे में आई। "बैठो।" उसे हनूज एक जानिब खड़ा फर्श को घूरते पाकर हुक्मिया अंदाज में वो बोला था कि वो चारों नाचार धीमे कदमों से चलती बेड पर बैठते ही नजरें झुका गई। "क्यों रो रही हो?" बेतासुर चेहरे में वो लहजे में सदियों की खून जमाए रूखे मगर तेज अंदाज में इस्तफसार करने लगा कि वो खामोश आंसू बहाते एकदम सांस रोके हैरत से बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, जो बिल्कुल स्पार्ट चेहरे से टांग पर टांग जमाए उसी को घूर रहा था। "क्या चाहती हो? मार दूं सबको?" जब के बावजूद भी उसका लहजा बिफरा सा था कि वो उसकी बेतुकी बात पर हैरान होती सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी, जिसकी आंखें मुसलसल उसके रुखसार पर से गिरते आंसुओं पर थी। जी?" वो सुनती एकदम से नासमझी से बौखलाए लहजे में बोली, "अगर एक भी आंसू गिरा ना, तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी।" वो उठता अपने भारी कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ता
तप कर बोला था। तुम्हें समझ नहीं आ रही अब्र, मैंने क्या कहा है? खामोश। वो झुंझलाए हुए उसके पास आते झुक कर बोला था, जबकि वो उसके इस अंदाज पर मजीद बौखला सी गई थी। क्यों रो रही हो? इज़मार की याद आ रही है? उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे बात करे उससे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसकी आंखों में आंसू देखकर। अजीबो गरीब कैफियत होने लगी थी उसके दिल की। जब भी वो पुरसकून होते, गहरा सांस भरते, खुद से महज कुछ फासले पर बैठी अब रेशम को देखकर अब नर्म लहजे में बोला कि वो फौरन से सर को हाँ में हिला गई। जिसे देखते ही वो आंखें मूंदते सर नफी में हिला गया। वो था मगर अब नहीं है। तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? नहीं, हम चाहकर भी जीना नहीं छोड़ सकते। तो बेहतर है कि हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुझे नहीं भूलना उसे। वो सुनती फौरन से फूट फूट कर रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। क्यों हर कोई उसे कह रहा था कि उसे भूल जाओ? कैसे भूलती उसे? क्या आसान था एकदम से? जिसे जिंदगी में शामिल किया हो, सांसों में बसाया जाए जिसे, उसे हम भूल जाएं? तुम कोशिश करो, अगर तब भी कामयाब ना हो सकी तो मैं हूं ना। वो सरसराते लहजे में गंभीर आवाज में सरगोशी करते बोला। वो सुनती हाथ चेहरे से हटाए उसे देखने लगी, जो जाने क्या ढूंढ रहा था उसके चेहरे में। लाला, अब जाए, कोई आ जाएगा। उसकी महवियत और नज़रों को खुद पर टिका पाते वो फौरन से बोली कि कोई नया बखेड़ा ना बन जाए। चला जाऊंगा मैं, मगर तुम इस कमरे से मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं निकलोगी और दरवाज़ा अंदर से लॉक रखोगी। और एक बात और, अब से दयार कहने की आदत डाल लो, क्योंकि ना मैं तुम्हारा लाला हूँ और ना ही असफन। सिर्फ दयार बोलोगी तुम। सख्त सर्जनिश करते लहजे में उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखते, उसका चेहरा ऊंचा करते, अपनी आंखें उसकी सुनहरी सुर्ख आंखों में गाड़ते शिद्दत से बोला था वो कि अब रेशम को जैसे सांप सूंघ गया उसकी बात पर। वो खामोशी से लब भींचते असफंदयार वली को देखने लगी, जिसका अंदाज, जिसकी बात, हर अंदाज निराला और अलग था इस वक्त। उसकी गहरी काली आंखों में भरी दहशत को देखते वो फौरन से आंखें बंद करती गहरे सांस भरने लगी, जबकि असफंदयार मुतमईन होते एक नज़र उसके सरापे पर डालते बाहर निकल गया।